Okay, so in our previous lecture, we have solved the example of finding a moment of inertia of T section. Okay, this was the section given to us. T section के सारे dimension दिए थे, and we found the moment of inertia of this T section about its center of gravity. Okay, ये T section का पहले हमने center of gravity find किया था, वो यहाँ पे आया था y bar distance पे and x bar जितने distance पे. उसके बाद दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था अपर सेक्शन का, सेक्शन नंबर 1 का, देन सेक्शन नंबर 2 का, देन सिंपली वी एडेड बोथ दीज सेक्शंस, मींस अपर रेक्टेंगल एंड लोअर रेक्टेंगल का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिंपली हमने ऐड कर दिया था. सो वी गॉट द फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंपोजिट सेक्शन ऑफ, और यू कैन से टी सेक्शन. ओके, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया was about x एक्सिस. ओके, जनरली क्या होता है, हमने ये टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट किया. ओके, दिस इज, वी कैन से दिस इज x एक्सिस. ओके, एंड द वर्टिकल एक्सिस passing from CG is y axis. Okay, so we have found about this x axis. Okay, but what if I want to find the moment of inertia of this composite section about y axis? Okay, तो क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले फॉलो की है कि जस्ट सिंपली लोकेट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट द सेक्शन 1 देन सेक्शन 2, दोनों का इंडिविजुअल सीजी कहाँ पे है वो लोकेट कर दिया. ओके, वो कॉमन प्रोसीजर है. नाउ व्हाट विल बी एडेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करेंगे. हमारा रेफरेंस वाई एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे. हियर आवर रेफरेंस वाई एक्सिस इज देयर. So first of all, what I will do, I will find the moment of inertia of first section about its own center of gravity. Okay, so I can say Iyy1. Similarly for section 2, Iyy2 find करेंगे, and finally we will add both of them. So let me show you quickly. Okay, so for section 1, moment of inertia about section 1's center of gravity is Tb³/12. जैसा कि मैंने बोला था कि y के अगेंस्ट में फाइंड करना है, तो y एक्सिस किसको कट कर रही है, इस 150 mm को कट कर रही है. सो वी विल टेक 150 mm³. You see here 150³ multiply by 20 divided by 12. Okay. And Iyy1 means moment, ये क्या था, moment of inertia about this. Okay. What if I want to find moment of inertia about Iyy? Okay, now for this example, ये जो Iyy है, Iyy1, okay, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस है वो सेम है, ओवरलैप हो रहा है. मीन्स ये जो दो एक्सिस है वो एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है. सो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0. So that is why this is equal to 0. Okay. And for section 2 similar procedure, सेम प्रोसीजर करेंगे सेक्शन 2 के लिए भी. So first of all, find the moment of inertia of section 2 about its own center of gravity, but about vertical axis. Okay, हमारा section 2 है यहाँ पे, and here is our reference axis, reference x, reference y, and this y axis is passing from here, from its center of gravity. तो दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या इक्वेशन आएगा, L/T³/12. यहाँ पे कट किसको कर रहा है, ये 20 mm थिकनेस जो है
उसको कट कर रहा है हमारा सेक्शन हमारा वाई वाई एक्सिस। सो 20 क्यूब मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल 180 के डायमेंशन ऑलरेडी हमारे पास थे, ये जो प्रीवियस एग्जांपल था उसका ही कंटिन्यूएशन है। ओके, एंड हियर आल्सो दिस वाई वाई एक्सिस एंड एक्सिस पासिंग फ्रॉम सी जी are overlapping on each other. Okay, so that is why this distance is equal to 0. So you can say Iy2 is equal to I moment of inertia passing from CG. So this is Iy2. So total Iyy or moment of inertia about yy axis is equal to Iy1 plus Iy2. This was a quick you can say summary how you can also find the moment of inertia about a vertical axis. So now we will go further for next example. Okay. So now you are given the data, find the moment of inertia about its centroidal axis. Okay, you are given an I section. Okay, forget about these sideways. Okay, यहाँ पे जो भी दिया है अभी आप उसको भूल जाइए। Okay, concentrate on this main figure only. Okay, you are given an I section. आपको एक I section दिया है, उसके सारे dimensions mention किए हैं। what are the dimensions? Okay, इसका जो width है upper web का that is 120 mm. Okay. then this dimension इसका height कितना है 10 mm. then जो बीच वाला rectangle है उसका height कितना है 120 mm. then again upper जो है उसका height कितना है 10 mm. तो यहाँ पे डायमेंशन ओवरलैप हो रहा है एंड हियर द थिकनेस of this web is again 10 mm. Okay, so you are given all the dimensions. Now you are required to find the moment of inertia of this I section, okay, about its centroidal axis. आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में करवाया था। लेट मी रीड्रॉ अगेन हियर। सपोज एक आई सेक्शन दिया है आपको, ऐसा कुछ आई सेक्शन आपको दिया है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था कि यू कैन डिवाइड दिस आई सेक्शन इनटू segments like segment number 1, segment number 2 and segment number 3 like this. Okay, ऐसे रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड कर सकते हो। Okay, you can divide in this kind of 3 rectangles जिसके डायमेंशंस आपको पता है। then simply first mention the reference axis and reference x-axis and do the same procedure that we followed in T section. ओके, सेम प्रोसीजर जो हमने T सेक्शन में फॉलो की थी वैसे ही प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए। या तो फिर ओके, अगर ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो फाइनल हमारा क्या आएगा, आई सपोज अबाउट एक्स एक्सिस हम बात करते हैं, देन आई एक्सेस टोटल विल बी आई एक्सेस 1 प्लस आई एक्सेस 2 प्लस आई एक्स 3। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आंसर जो हम दूसरी प्रोसीजर करेंगे वो सेम ही आएगा। सो व्हाट आर दी अदर वेज यू कैन डू। ओके, दिस आई सेक्शन कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस आल्सो। ओके, सपोज एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है, उसमें से उसमें से मैं 2 रेक्टेंगल्स कट कर देता हूँ लाइक दिस।
So now you can see, अगर मैं आउटर रेक्टेंगल्स में से 2 रेक्टेंगल्स छोटे वाले कट कर देता हूँ, then also I will get an I section. So what can I do here? Okay, this is my first outer rectangle. उसके अंदर से मैं 2 छोटे वाले रेक्टेंगल्स मीन्स रेक्टेंगल नंबर 2 and rectangle number 3. Okay, let me do the naming. Rectangle number 2, rectangle number 3 मीन्स जो बड़ा आउटर रेक्टेंगल है उसमें से मैं ये छोटे वाले 2 रेक्टेंगल सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तभी भी मुझे आई सेक्शन ही मिलेगा. तो इफ आई एम गोइंग विथ दिस प्रोसीजर, देन आई विल find the moment of inertia in this way. I xx is equal to I xx 1 मीन्स जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो उसमें से I xx 2 छोटा वाला रेक्टेंगल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स ये सेकंड नंबर वाला, उसमें से अगेन जो दूसरा है छोटा वाला रेक्टेंगल नंबर 3 इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे. तो अगेन यू विल गेट I xx. ओके, माइंड वेल, ये दोनों प्रोसीजर से आंसर सेम आएगा. विच एवर कन्वीनियंट टू यू, आपको जो भी ठीक लगता है, आपको आता है, वो प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं. सो ऑलरेडी टी सेक्शन के लिए मैंने ये वाला फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसीजर करवा दिया है. सो नाउ आई एम शोइंग यू दिस सेकंड वन. मीन्स बड़े रेक्टेंगल्स में 2 छोटे वाले रेक्टेंगल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम. सो हियर आई हैव शोन वन आउटर रेक्टेंगल, ओके, वन बिगर रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन मैंने मेंशन किया है 120 मीन्स इसका विड्थ है 120 के, और इसका हाइट कितना लेंगे पूरा ऊपर तक, टोटल हाइट. सो 10 + 120 + 10 इज इक्वल टू 140. और जो छोटे वाले रेक्टेंगल दिखाए थे यहाँ पे उसके डायमेंशंस क्या आएंगे. दिस रेक्टेंगल उसका डायमेंशन क्या होगा, ये जो दूसरा वाला रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन क्या होगा. इसका हाइट है, कितना है हाइट 120, और इसका विड्थ ये जो साइड है वो कितना होगा. इफ यू सी टोटल जो आई सेक्शन है उसका विड्थ है 120, और ये जो वेब है उसका विड्थ है 10. ये है 10. तो अगर मैं हाफ डिस्टेंस लेता हूं, अगर मैं हाफ डिस्टेंस लेता हूं तो कितना आएगा 60. मीन्स यहाँ से इस लेफ्ट एज से हाफ जो मिडल लाइन है उस तक का डिस्टेंस आएगा 60. बट मुझे कहाँ तक का चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ तक का. सो आई सिंपली सब्सट्रैक्ट 5. ओके, इसका टोटल विड्थ कितना है 10. ओके, तो 10 का हाफ कितना होगा 5. ओके, सो अगर मैं 60 में से 5 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे इतना विड्थ मिल जाएगा. तो विड्थ ऑफ दिस सेक्शन नंबर 2 इज 55 mm. और जो सेक्शन नंबर 3 मीन्स यहाँ पे जो तीसरा रेक्टेंगल है दैट इज आइडेंटिकल विथ रेक्टेंगल नंबर 2. के उसके डायमेंशन सेम है, मीन्स हाइट 120 एंड विड्थ जो है वो 55. तो फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस थर्ड, so you get the final I section. We clear things up. Okay, so that is the problem, and now let's look how we will solve. Okay, first of all आपको क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन 1 को इंडिविजुअली एनालाइज करना है, देन सेक्शन 2 को इंडिविजुअली एनालाइज करना है, देन सेक्शन 3 को. ओके,
सो सेक्शन नंबर 1 के लिए फर्स्ट उसका एरिया फाइंड करेंगे, देन सेक्शन नंबर 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स x1 एंड y1 फाइंड करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 2 एंड 3 का भी एरिया, x एंड y डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और रेफरेंस एक्सिस हम कहाँ पे रखेंगे? ऑन दी लेफ्ट मोस्ट साइड, यहाँ पे रेफरेंस x एंड रेफरेंस y एक्सिस। तो लेट्स एनालाइज इट। तो अगर फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? I1 इज इक्वल टू, रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है BD³/12। सो और इसमें हम x हियर वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो 140 को कट कर रहा है ये एक्सिस, सो 140³ मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 12। सिमिलरली सेकंड रेक्टेंगल जो है उसके लिए वो भी रेक्टेंगल ही है, सो BD³/12 यहाँ पे किस कौन से वाले डायमेंशन को कट करेगा? हमारा x एक्सिस, ये जो 120 है उसको कट करेगा। तो हियर 120³ मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 12। Simply substitute the value, and similarly for I3 BD³/12 सेम आंसर आएगा जैसे कि 2 का है। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 माइनस I3। Okay, this moment of inertia is Ix. Okay, now you will be wondering कि मैंने parallel axis theorem क्यों यूज नहीं किया है यहाँ पे। Let me show you here. Okay. Here is the I section. Okay. ये जो हमारा ब्लू वाला रेक्टेंगल है वो आउटर रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर सेकंड नंबर का ये रेक्टेंगल है और उस इस साइड पे थर्ड रेक्टेंगल है। नाउ इफ आई एम टेकिंग दी एक्स एक्सिस, तो वो कहाँ से पास होगी? एग्जैक्टली सेंटर में से। सो आउटर रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे होगा? ये जो रेड लाइन बताई है वहीं पे होगा। ये जो सेकंड नंबर का रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? दैट विल बी अगेन ऑन दिस रेड लाइन। एंड जो थर्ड रेक्टेंगल है उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? अगेन ऑन दिस रेड लाइन। तो यहाँ पे जो एक्सिस है जो हमारे आई सेक्शन का और ये जो 3 रेक्टेंगल हमने देखे उसका, वो ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे। एक्स एक्सिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर ओवरलैपिंग। सो द डिस्टेंस h means the distance between center of gravity of rectangle 1 and rectangle and I section, and rectangle 2 and I section and rectangle 3 and I section are overlapping. So this distance h is 0. So वो जो इक्वेशन है I is equal to Ig plus area into h square, तो इन तीनों रेक्टेंगल के लिए ये डिस्टेंस 0 हो रहा है। So that is why I have directly taken I is equal to Ig. Okay, Ixx to be precise. Ixx is equal to Ig. So you can see in some of the examples, if you solve by this way, means you are taking outer rectangle then subtracting the inner 2 rectangles. If my section is symmetric, okay, then this procedure will be short. अगर आपने जो T सेक्शन में प्रोसीजर करवाया था कि रेक्टेंगल नंबर 1 यहाँ पे है, देन रेक्टेंगल नंबर 2 यहाँ पे है, देन रेक्टेंगल नंबर 3 is over here. Okay. If I would go with this procedure,
तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाता, बिकॉज इसके अंदर क्या था, मुझे तीनों का एरिया देन डिस्टेंस एक्स वाई फाइंड करना पड़ता, जैसा कि टी सेक्शन में किया था, सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, तो ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता। दैट इज वाई आई शोड यू हियर अनदर वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल, कि अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और स्पीडीली सॉल्व कर पाओगे। तो यू आर गेटिंग दिस? इज देयर एनी कंफ्यूजन? Are you getting this example? Yes, sir. Okay, good. So सर yes, ये वाले मेथड हम टी सेक्शन में कर सकते हैं? yes, of course you can do, but T section में अभी करोगे तो क्या होगा? Let me show you. देखते हैं कि T section में अगर ये करते हैं तो क्या होगा। So suppose here is our T section. तो अगर मुझे ये टी सेक्शन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू, और यू कैन से इक्विवेलेंट टू, कि मेरे पास कोई आउटर रेक्टेंगल है, ओके, जिसका आउटर डायमेंशन ये टी सेक्शन जितना है, उसमें से मुझे दो रेक्टेंगल्स जो है वो सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ओके, एक यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे, so that will make up my T section। अभी टी सेक्शन में क्या है कि आउटर रेक्टेंगल, कि मैं यहाँ पे तीनों रेक्टेंगल को सेपरेट कर रहा हूँ, ओके, दिस इज आउटर रेक्टेंगल माइनस ये जो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है छोटा वाला, दैट इज सेकंड नंबर, माइनस ये जो राइट वाला रेक्टेंगल है वो वाला थर्ड वन। So now if you look at here, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा? लेट मी यूज अदर कलर। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा यहाँ पे, ओके, मीन्स अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस आप देखते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग एक्स एक्स, ओके, आई एक्स एक्स। सपोज मैं आपको डायमेंशन देता हूँ कि ये जो टी सेक्शन है उसका डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल 200 है, ओके, और इसका विड्थ है 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा जो आउटर रेक्टेंगल है बड़ा वाला रेक्टेंगल, उसका टोटल हाइट कितना होगा? 200, सो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा? 100 mm डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, ठीक है। और ये जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन क्या होगा? उसका हाइट कितना होगा? यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला रेक्टेंगल होगा उसका डायमेंशन कितना होगा? 180। ओके, हाइट विल बी 180, 200 में से 20 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट होगा उसका होगा 180, तो उसका इसका हाइट है 180, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा? 90 mm, okay, and similarly for third rectangle also 90 mm, okay। So you see now over here कि मेरा फर्स्ट आउटर रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 100, सेकंड है उसका है 90 और थर्ड है उसका है 90। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे आपको x बार फाइंड करना पड़ेगा एंड दैट विल नॉट बी इक्वल टू x1 और x2 और x3। हमारे आई सेक्शन में क्या था? लेट मी शो यू इन आई सेक्शन, ओके, कहाँ पे गया? लेट मी ओपन अप, ओके।
यहाँ पे आई सेक्शन में क्या था, आई सेक्शन में मेरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आउटर रेक्टेंगल तो हमको मालूम ही है। ओके, लेट मी यूज अदर कलर। आउटर रेक्टेंगल यहाँ पे है जिसका हाइट कितना है 120 प्लस 10 प्लस 10 140 है। ओके, सो अगर मैं आउटर रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करता हूँ तो वो आएगा कितने डिस्टेंस पे, आउटर रेक्टेंगल का कितना आएगा, सॉरी y1 कितना आएगा 140/2 इज इक्वल टू 70। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज y बार, ओके नॉट x, दिस इज ऑल्सो y, तो आई वॉज शोइंग इन दिस। ओके, यहाँ पे y1 कितना आएगा 70। सेकंड रेक्टेंगल को देखते हैं तो y2 कितना आएगा, कि इसका हाइट है 120। ओके, सो इस रेक्टेंगल के लिए y2 आएगा कितने डिस्टेंस पे 60, बट यू सी इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 mm फ्रॉम दिस एज, यहाँ से 60 mm पे आएगा, बट हमको कहाँ से मेजर करना है, बॉटम में से। ओके, जो रेफरेंस हमारी x एक्सिस है वहाँ से मेजर करना है। So this is already 10 mm. Okay, so 10 plus 60 is equal to again 70. Okay, so 60 plus 10 is equal to 70. So you see here y1 is equal to 70, y2 is equal to 70, and if you find y3 it will also be equal to 70. Okay, तो तीनों का वैल्यू आता है 70। सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन द y बार इक्वेशन, y बार इज इक्वल टू y1 what was that, a1 y1 plus a2 y2 plus a2 a1 y1। ओके, हियर माइनस a2 y2 करेंगे, माइनस a3 y3 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। Okay, so if you find with these equation you will find that y bar will come 70। okay, y bar का वैल्यू 70 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई सेक्शन में y bar इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3। ओके, तो ये जो y bar एक्सिस होगी हमारी और y1 के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्टेंस विल बी 0। तो जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहते हैं कि I इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, सो दिस h इज 0 इन केस ऑफ I सेक्शन। बट T सेक्शन में क्या है, T सेक्शन में हियर y1 इज इक्वल टू 100, y2 इज इक्वल टू 90 एंड y3 इज इक्वल टू 90। सो y बार जो है उसकी वैल्यू में और y1 की वैल्यू में कुछ डिफरेंस रहेगा, देन y बार और y2 की वैल्यू में भी डिफरेंस रहेगा, एंड y बार एंड y3 के डिस्टेंस में भी डिफरेंस रहेगा। तो फॉर T सेक्शन आई वुड नॉट सजेस्ट दिस प्रोसीजर। आप जा सकते हो बट अल्टीमेटली सेम एफर्ट रहेगा, आप जा सकते हो, ओके यू कैन डू, आंसर सेम ही आएगा। ओके, बट यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन केस ऑफ T सेक्शन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, so let me take another example. I'll quickly go to it. Okay, so now this is a complex example. Okay, I think we have solved similar kind of example in case of center of gravity. Center of gravity find करना था, उसमें हमने इस तरह का example देखा है। So I think I would assume that you know how to locate the center of gravity of this kind of complex section. X bar और Y bar जो find करना है वहाँ तक का प्रोसीजर सिमिलर ही रहेगा।
कि एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो और अगर आपको नहीं आता है सो एटलीस्ट यू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार फॉर गिवन सेक्शन। एक्स बार और वाई बार आप फाइंड करोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। So let's quickly go through it. Determine moment of inertia of plane area, okay, as shown in figure. Figure में आपको दिया है about its baseline. Okay. तो यहाँ पे moment of inertia find करना है not about its center of gravity but about its baseline. ये जो baseline है उसके against में moment of inertia find करना है। Also find x bar and y bar. So अभी तक हमने जो देखा है टी सेक्शन आई सेक्शन में वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था अबाउट सेक्शंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, टी सेक्शन था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया था और उसके अगेंस्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू बेस फाइंड करना है। So again we will divide this complex section into 3 sections. Section number 1 as a rectangle. ये जो rectangle है dimensions आपको सारे दिए हैं। Okay, section number 1 is rectangle जिसका dimension है 300 multiply by this much distance. Okay, 100 plus 300 is 400. Okay, so 300 by 400 का rectangle है। Then section number 2 is a triangle जिसका बेस है 200 mm और हाइट कितना है 300 mm। एंड सेक्शन नंबर 3 है दैट इज अ कटआउट। ये सेक्शन नंबर 3 इज अ कटआउट। ये जो है एक सेमी सर्कल। ओके, इस सेमी सर्कल का डायमीटर हमको दिया है 300 mm। ओके, सो रेडियस विल बी व्हाट 300 by 2 that is 150 mm will be the radius of this semicircle. So these 3 sections are given to us. So we will first of all divide these sections and do the procedure section wise. Okay, so first of all for section number 1, okay, और reference axis आपको कहाँ पे रखनी है लेफ्ट मोस्ट side of this complex or composite section and bottom most side. So we'll follow these reference axis for all these 3 sections. Okay, so section number 1, for section number 1 reference axis कहाँ पे आएगी यहाँ पे। So section number 1 is a rectangle. Okay, carefully see this procedure. आपको यही procedure हर एक बार follow करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। So section number 1 is a rectangle जिसका dimension है 300 by 400. So area of this rectangle will be A1 is equal to 300 multiplied by 400 mm square. और ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का CG कहाँ पे आता है अगेन एट द सेंटर ऑफ द सेक्शन। एग्जैक्टली सेंटर में आएगा रेक्टेंगल का। मींस ये 400 है उसके हाफ डिस्टेंस पे, मींस y एक्सिस से अगर मैं देखता हूँ तो x डायरेक्शन के अंदर 200 mm पे, और ये जो रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस से वहाँ से देखता हूँ तो y डायरेक्शन में 150 mm पे आएगा। So y1 is equal to 150 and x1 is equal to 200. इतना डेटा हमने ले लिया। Now go for second section. Okay, second section is a rectangle. Triangle. तो हमारा ट्राइंगल यहाँ पे कहाँ पे है, हमारी रेफरेंस एक्सिस है उससे ऑलरेडी 400 mm जितने डिस्टेंस पे है। So I will show here हमारा रेफरेंस वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे है एंड रेफरेंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे है, एंड माय ट्रायंगल इज ऑलरेडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 mm फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, and we know the base is 200 mm, height is 300 mm. Okay, so area of this rectangle is 1/2 b into h, and a triangle का CG कहाँ पे आता है, we already seen that triangle का CG है
यहाँ से अगर ये मैं बेस कंसिडर करता हूँ तो b/3 जितना डिस्टेंस पे आता है, और अगर मैं वर्टेक्स बेस वाली वर्टेक्स है वहाँ से देखता हूँ तो ट्वाइस b/3 जितने डिस्टेंस पे आएगा। एंड हाइट में देखता हूँ देन बॉटम बेस में से h/3 जितने डिस्टेंस पे आएगा, और अगर हाइट वाली वर्टेक्स से देखता हूँ तो वहाँ से ट्वाइस h/3 जितने डिस्टेंस पे आएगा। ओके, दिस थिंग वी ऑलरेडी नो, हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं उसमें ये दिखाया है व्हाई दिस इज सो। तो हियर ये डिस्टेंस कितना रहेगा, h/3 दैट इज इक्वल टू 300/3 दैट इज 100 mm, और ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा b/3 कितना है 200/3। नाउ दिस b/3 ओके जो मैं लेता हूँ 200/3 वो डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर किया, ये जो ट्राइंगल का ये वाला एज है वहाँ से, बट मुझे कहाँ से चाहिए from my reference axis, reference vertical axis. Okay, so I will add 400 into it. Okay, so x2 is equal to the 66.6 mm plus 400. So that is for second section. And third section हमारा जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसमें थर्ड सेक्शन है that is a semicircle, वो कहाँ पे है, that is at 100 mm from my reference vertical axis. So again I would like to show here my reference axis, reference vertical axis and reference horizontal axis, and the semicircle is at a distance 100 mm from my vertical axis. और सेमीसर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आता है, अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो एग्जैक्टली एट सेंटर, सॉरी इफ वी टेक हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे आएगा 4r/3 पाई। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस, ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो y3 will be 4r/3 pi, देन x3 मीन्स x डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे रहेगा 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 250 mm पे रहेगा। So x3 is equal to 250 mm, y3 is equal to 63.66 mm, and area A3 is equal to pi r square by 2. So now we have values of area, then x and y for all these three sections. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली फाइंड y बार, ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऑलरेडी ये प्रोसीजर कर चुके हैं। y बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 माइनस a3y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। जो भी वैल्यू हमने फाइंड की है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट y बार इज इक्वल टू 163.53 mm, and similar procedure for x bar also. Okay, so यहाँ तक का प्रोसीजर हम सबको मालूम है। Now we will go and find the moment of inertia of the section about base. तो हमारा फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, एक रेक्टेंगल है, okay, और उसमें रेफरेंस एक्सिस हमारी है यहाँ पे, let me use other color, यहाँ पे हमारी रेफरेंस एक्सिस है। ओके, और इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सॉरी दैट इज बेस एक्सिस, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज bd³/12, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। बट मुझे फाइंड कहाँ पे करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बेस एक्सिस, जो कितने डिस्टेंस पे है
that is at a distance of what can I say, कितने डिस्टेंस पे है, रेक्टेंगल जो है उसका हाइट है 300, सो 150 mm पे रहेगा. दिस इज 150. Okay, this total height is 300. Okay, dimensions of this rectangle 300 multiplied by 400. Okay. So BD cubed by 12 plus area. Okay, this is area. Okay, and this is h square. If you see, this is h square. Okay. Area is equal to 300 multiplied by 400, and this h is 150 for our first section. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस I1 इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस. जो रेक्टेंगल है हमारा फर्स्ट सेक्शन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस फाइंड कर लिया, दैट इज दिस. ओके, डोंट कंफ्यूज विद दिस वैल्यू. ओके, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, आप सिंप्लीफाई ना करके डायरेक्टली ये जो डिजिट्स है वैल्यूज वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा. देन सेक्शन 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 2 अबाउट बेस. सेक्शन 2 हमारा कौन सा है, दैट इज अ ट्राइंगल. और ट्राइंगल का हमने फाइंड किया है, ट्राइंगल का कितने डिस्टेंस पे है, y2, इट इज 100 mm डिस्टेंस पे है. और हमको फाइंड कहाँ पे करना है, बेस के अगेंस्ट में. यहाँ पे फाइंड करना है बेस के अगेंस्ट में. तो फॉर ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी BH क्यूब बाई 36. ये ऑलरेडी डिराइव करवाया है इक्वेशन, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन बिकॉज एग्जाम्पल में यूज होता है. तो दिस इक्वेशन इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल about its center of gravity. But हमें कहाँ पे फाइंड करना है, about base. Okay, so we will use the parallel axis theorem. This is again h, which is equal to 100. So area of the triangle is 1/2 b into. Okay, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे. This is h. This is h by 3. So area of the triangle is 1/2 b into h, and the distance between these two axes is equal to h by 3. Okay, so h by 3 square. Simply substitute all the values. Okay, no need to simplify it. यहाँ पे मैंने simplify करके बताया है, but आप नहीं करोगे और directly value substitute करोगे, then also it is okay. And third section, I3, moment of inertia of a semicircle. Okay, about base is equal to pi by 64 d raised to 4 by 2. ये ऑलरेडी हमको पता है कि पूरा सर्कल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 डी रेज टू 4. अगर मैं सेमी सर्कल लेता हूँ, हाफ सर्कल, okay, so उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बेस विल बी हाफ ऑफ दिस. Okay, so 1/2 pi by 64 d raised to 4. Simply put all the values, you will get the answer. Okay, और हमारा कंपोजिट सेक्शन है पूरा, जो फर्स्ट फिगर में हमारा है, ये वाला जो हमको प्रॉब्लम दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, जो रेक्टेंगल है वो प्लस ट्राइंगल माइनस सेमी सर्कल. सो वही चीज हमने की है. सो आवर वैल्यू इज दिस. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व फॉर कंपोजिट सेक्शन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है, सिंपल प्रोसीजर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. x बाई वाई बाई तक का स्टेप्स तो कॉमन ही है. देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पर्टिकुलर सेक्शन इंडिविजुअली, देन सम और सब्सट्रैक्ट. आर यू गेटिंग दिस? Yes. Okay, good. So I would stop here because we are running out of time now. We are only having 5 minutes. So I will stop here.